This Alaikum sir conference ji. will now be recorded. الحمدللہ سر جی آپ BC میں اسٹوڈنٹ زیادہ ہوتے ہیں انگلش کی لسٹ میں. اچھا چلیں اب یہ ہو گیا ہے. سائن ان اور سائن آؤٹ کے چکر میں تھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے. چلیں برٹ ہو گیا. آپ بتائیں کیا کر رہے ہیں, کیوں کر رہے ہیں جی؟ جی کیا کرنا ہے؟ کچھ نہیں کرنا. ڈونٹ یو وانٹ ٹو ڈو اینی تھنگ؟ سر وہ ہم زیادہ ہی بتائیں گے. کل ہم بات کر رہے تھے کس کی؟ کانفلکٹ کی. ایکسرسائز جو کر رہے تھے وہ نکالے. ویل فائنڈ سم فولڈر اس میں دیکھ لیتے ہیں. یس سر کون سی کنفلکٹ جی؟ یہ ایکسرسائز جو ہم کر رہے تھے پیج نمبر کون سا تھا؟ پیج نمبر سر 56 سر 56. یس سر چلیں 56 پہ دیکھیں اس میں کیا ہے جی. کوشچن نمبر 56 پہ کوشچن. ہاں 30 پیج 30 سر MCQ number. اوکے کوشچن نمبر 30 اوکے. which one of the following is the it was actually something relating to conflict کی بات آ گئی تھی. اس سے پھر ہم نے بات کی تھی. کہتے اس میں کون سی کریکٹ السٹریشن ہے, کون سی بات یعنی کہ صحیح ہے. ٹھیک, تب آپ دیکھ لیں. اے میں ہی سینگ کہ کانفلکٹ جو ہے جی, اے میں وہ کہہ رہا کہ کانفلکٹ کیا ہوتا ہے. ٹو ڈپارٹمنٹس ہیڈ آن ہیڈ ٹو ون دا موسٹ پروڈکٹیو ڈپارٹمنٹ آف دا آرگنائزیشن. آگے کا آرگومنٹ ہے مینیجر سپلائی چین اینڈ سپلائر ڈس ایگری آن دا پرائس کوٹا ود ان دا یہ کیا ود دا مینیجر فائنلی برنگنگ اٹ ڈاؤن. Competition solving the matter about which product will be launched first after a long discussion. Conflict. The supply chain felt the new procurement policy by the administration will derail their purchases, setting them back on the target. اب آپ دیکھ لیں اس کوشچن کو. بات صرف سمجھنے کی ہے, سمجھ لیں تو اٹس ویری ایزی, نہ سمجھے تو مشکل ہے. جی کوشچن نمبر ہمارا ہے 30. تو آپ اس میں دیکھیں, پہلے کو دیکھیں جی. اے میں وہ کہہ رہا ہے, اوپر اس نے لکھا ہے کانفلکٹ, اور آگے کہہ رہا ہے کہ دو ڈپارٹمنٹس ہیں اور ان کا آپس میں ٹاکرا ہو رہا ہے. اور کس چیز پہ ہو رہا ہے کہ مطلب وہ کہتے ہیں جی مطلب کہ ان میں سے ہر ایک چاہ رہا ہے کہ اس کو تھوڑا سا پروڈکٹیو ڈپارٹمنٹ مل جائے. ٹھیک, ٹھیک. کانفلکٹ ہے یا نہیں ہے؟ ہے یہ سر ہے. یہ کانفلکٹ ہے یا کچھ اس سے ملتی جلتی کوئی چیز ہے کہ آپس میں وہ ایک لحاظ سے کمپیٹ کر رہے ہیں. وہ مطلب آپ چاہ رہے ہیں کہ مجھے یہ چیز مل جائے, میں چاہ رہا ہوں کہ مجھے وہ مل جائے. تو یہ سارٹ آف کمپٹیشن ہے, کانفلکٹ ٹائپ ہے, لیکن اصل میں کمپیٹ کر رہے ہیں. بی کو دیکھیں, آرگومنٹ کا مطلب دلیل ہے. دلیل کیا؟ مینیجر سپلائی چین اینڈ سپلائر ڈس ایگری آن دا پرائس کوٹا ود دا مینیجر فائنل برنگنگ اٹ ڈاؤن. اس کا کیا مطلب ہوا کہ سپلائی چین کا جو مینیجر ہے اور جو سپلائر ہے وہ ڈس ایگری کرتے ہیں پرائس کوٹا پہ, اور جو ہے وہ فائنلی جو ہے مینیجر جو ہے اس کو یعنی کہ نیچے لانے میں کامیاب ہو جاتا ہے. اس میں کانفلکٹ ہے. ہم نے دیکھنا ہے کون سی بات تھوڑی صحیح ہے. اس میں کیا ہو رہا ہے کہ دو بندے ہیں اور آپس میں وہ ان کا اختلاف چل رہا ہے. جی اختلاف کر رہے ہیں, لیکن کس شکل میں؟ دلیل دے رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں نا, یہ چیزیں تھوڑی ملتی جلتی ہیں, ان بات کو تھوڑا سا دھیان سے دیکھنے کی ضرورت ہے. سی کو آپ دیکھ لیں, سالونگ دا میٹر اباؤٹ وچ پروڈکٹ ول بی لانچ فرسٹ آفٹر لانگ ڈسکشن ان دا میٹنگ. کہتا کہ مطلب ان کا ایک کافی لمبی چوڑی ڈسکشن ہوئی میٹنگ میں. انہوں نے کہا اس پہ فیصلہ کرنا کہ بھئی کون سا پروڈکٹ ہم جو ہے لانچ کریں. تو یہ جو سی ہے یہ ایک لحاظ سے آرگومنٹ بن رہی ہے, کیونکہ دلیلیں چل رہی ہیں, بحث مباحثہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اور جو بی جو تھی وہ کیا تھا
manager supply chain and supplier disagree on the price quota with the manager finally right bringing it down. वो आपस में एक लिहाज के लिए कंपटीशन उनका चल रहा है. D में देखें, the supply chain felt the new procurement policy by the administration will derail their purchase, setting them back on the target. अब देखें फंडा तो इसमें ये चल रहा है ना, असल में सप्लाई चेन के बंदे ये सोच रहे हैं कि जो नई उन्होंने प्रोक्योरमेंट पॉलिसी बनाई है कि चीजों को हासिल करने के लिए, उससे मतलब उनकी परचेजिंग जो है बड़ी वो नीचे हो जाएगी और उनका बेड़ा गर्क हो जाएगा. तो फिर आप बताइए, चीजें मिलती जुलती हैं, तो इसमें कॉन्फ्लिक्ट सही मानों में किस में हो रहा है? इसमें कहते हैं इससे तो हम बड़े नुकसान में चले जाएंगे. तो इसमें आंसर आप क्या समझते हैं? डी नहीं बन रहा. भाई देखे ना, बाकियों में या कम्पीट कर रहे हैं या थोड़ी दलील चल रही है, और इसमें जो है एक क्लियर कट है जी कि मतलब जी मसला ये है जी कि ये जो आप स्टेप लेने जा रहे हैं, इससे हम तो हमारा बेड़ा गर्क हो जाएगा. तो ये कॉन्फ्लिक्ट है. तो इसलिए मेरा ख्याल आउट ऑफ द गिवन बेटर आंसर इज डी. आगे देखें, इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैन रिसॉल्व एनी कॉन्फ्लिक्ट व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्ट इलस्ट्रेशन. क्वेश्चन समझ रहे हैं आप? कहते हैं अगर इफेक्टिव कम्युनिकेशन है तो उससे कोई भी मसला कॉन्फ्लिक्ट हल हो सकता है. तो कौन सी इसमें से बात सही नहीं है? जी, ब्रिंगिंग बोथ द पार्टीज फेस टू टॉक आउट द प्रॉब्लम, एक ये है. रेप्रिमाइंडिंग द ऑफिसर फॉर नॉट कोऑपरेटिंग विद द न्यू मैनेजर, रेप्रिमाइंड होता है किसी को झाड़ना. चेंजिंग द डिपार्टमेंट ऑफ द employee after repeated warnings to diffuse disagreements within the department. क्या आप किसी एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट बदल देते हैं, ठीक है, पहले उसे वार्निंग वगैरह देते हैं, उसका डिपार्टमेंट बदल देते हैं. प्रिटेंड द कॉन्फ्लिक्ट नेवर हैपेंड एंड डिनाई इट्स इम्पैक्ट. चौथी बात ये है कि आप कहते हैं जी कॉन्फ्लिक्ट तो हुआ ही नहीं है, इसका कोई ऐसा लेना देना ही कोई नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक, तो 30 के बाद उन्होंने जो है आगे आंसर ही नहीं दिए माशाल्लाह. 30 के बाद उन्होंने आंसर दिया है 38. देख रहे हैं ऐसे ही जी. 31 का आंसर है, हैज दैट बीन गिवन? 31 का आंसर देखिए. हाँ, डी दिया हुआ है. 31 का डी है. डी या डी दिया हुआ है. ये हमारा चैप्टर कौन सा है? चैप्टर 2 है सर. चैप्टर 2 है और 31 का आंसर है सर पीछे वाले पेज में है ना, 259 पे है. 259 पे सर पेज. 31 का आप देखें, आपका माइंड क्या कहता है कि डी है कि नहीं? मेरा माइंड में डी का है सर. हाँ देखिए, क्वेश्चन बड़ा क्लियर है. कहता है कि अच्छा कम्युनिकेशन जो है अगर हो तो उससे कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हल हो सकता है. इनमें से कौन सी बात सही नहीं है, हमने कौन सी इलस्ट्रेशन सही नहीं है? तो हम ABCD को ले लेते हैं. अगर वो कहते हैं दोनों पार्टीज को फेस टू फेस बुलाएं जी, तो जाहिर है ये तो अच्छी बात है, शायद मसले का हल हो जाए. बी में मतलब ये है कि वो अगर मैनेजर जो है वो जो है उसको थोड़ा सा ऑफिसर बल्का को थोड़ा सा झाड़ता है कि भाई तुम मतलब ये काम क्यों नहीं कर रहे, तो ये भी हिकमत अमली ठीक है कि आपका कोई सीनियर आपको थोड़ा सा सख्ती से कहता है भाई ये काम करो, ये भी पॉलिसी मुमकिन है. और तीसरे में उसे कहते हैं जॉब रोटेशन. हम कहते हैं जॉब रोटेशन. उसमें ये होता है कि हम किसी बंदे का जॉब डिपार्टमेंट बदल देते हैं. आप कहते हैं ठीक है यार आपकी फलां के साथ नहीं बनती तो मैं आपको दूसरे डिपार्टमेंट में भेज देता हूँ. इस प्रोसेस को कहते हैं जॉब रोटेशन. तो कहते हैं मतलब उस किसी एम्प्लॉय का वो डिपार्टमेंट अगर बदल देते हैं, ठीक है, पहले वार्निंग देते हैं कि यार ना लड़ो, ना नहीं होता तो फिर वो कहते हैं यार इसका जो है वो शोबा बदल दें, इनकी फर्ज के सेक्शन बदल दें इंस्ट्रूमेंट्स के, तो उससे भी चांस है कि कॉन्फ्लिक्ट थोड़ा सा हल हो जाएगा. तो डी में वो कह रहे प्रिटेंड द कॉन्फ्लिक्ट नेवर हैपेंड एंड डिनाई इट्स इम्पैक्ट. और चौथे वो कह रहे जी कि अब ये तासुर दे जी कॉन्फ्लिक्ट कभी क्या है जी हुआ ही नहीं है, ऐसी भी बात है ही नहीं. तो ये तो आपको बताया था अवॉइडिंग टेक्निक है, ये तो सबसे बुरी चीज है, तो हम इसी को कह सकते हैं कि ये चीज गलत है. सो आंसर इज डी, आउट ऑफ द 32 में देखें, while when delivering negative messages following consideration need to be made. कहते हैं एक नेगेटिव मैसेज है तो उसमें आपने किस बात को ज़हन में रखना है. अब ये सिंपल है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है. गुड न्यूज फर्स्ट एंड एट पॉजिटिव स्टेटमेंट,
avoid repeating the bad news, offer an explanation, present the bad news in a very vague manner, or present an alternative. तो कहते हैं नेगेटिव मैसेज आपने अगर देना है तो इसमें किस बात को आप जहन में रख के चलेंगे? सर मेरे ख्याल में ऑप्शन डी आ रहा है। आप कह रहे हो डी आ रहा है। अब इसमें जो उनका आंसर है वो कहते हैं ए बी सी एंड ई है, ये सब कुछ है। तो मतलब कहते हैं एक मतलब बुरा मैसेज है, बैड न्यूज है, तो उसको आपने देने से पहले किस बात का ख्याल रखना है? अगर ए को ले, गुड न्यूज फर्स्ट, तो जाहिर बैड मैसेज में हमने गुड न्यूज तो मतलब स्टार्ट में देने वाली बात हो ही नहीं सकती, ठीक? ये तो नहीं हो सकता, ये क्वेश्चन फिर गलत लग रहा है। अवॉइड रिपीटिंग द बैड न्यूज। सर आपने बोला तो था कि नेगेटिव मैसेज देने के लिए पहले आप कोई उसको यानी कि अच्छी खबर दें, बाद में दरमियान में बैड खबर दें। गुड न्यूज फर्स्ट, गुड न्यूज देखिए ना, बैड मैसेज में गुड न्यूज का कॉन्सेप्ट तो नहीं होता है ना, वो मैंने आपको बताया था, उसको भी बफर स्टेटमेंट देंगे। अब ये थोड़ा कि आपकी फैक्ट्री में आग लग रही है तो मैं गुड न्यूज कहाँ से लाऊंगा? पहले तो हमने भी ऐसी बात करनी है जी कि मसलन लाइफ जो है इसमें लॉस होते रहते हैं और मतलब ये है किसी का प्लान हो जाता है, किसी की डेथ हो जाती है, तो ये बफर स्टेटमेंट और चीज है ना। गुड न्यूज तो हम गुड न्यूज मैसेज में देते हैं कि अच्छा मैसेज, उसमें गुड न्यूज देते हैं और एंड करते हैं पॉजिटिव, ये बात नहीं हो रही। रिपीटिंग द बैड न्यूज, ये बात ठीक है, ठीक है कि आप बार बार उसको रिपीट मत करें ताकि उससे अगला तंग होता है। ऑफर एन एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन तो आपने देनी है, ठीक। प्रेजेंट द बैड न्यूज इन अ वेरी वेग मैनर, ये सारा सवाल ही गलत है। चौथे में कह रहा जी बैड न्यूज को आप बड़े अनक्लियर अंदाज से कहें कि भाई ये जैसे हम किसी को कहें जी आग लगी, नहीं जी मतलब अगला क्या यार बताओ तो सही है क्या, तो ये क्वेश्चन गलत है। इसमें बी ठीक है, सी ठीक है, डी की कोई तुक नहीं बनती। और प्रेजेंट एन ऑल्टरनेटिव, ये तो आपको बताया था कि बैड न्यूज में यू हैव टू गिव ऑल्टरनेटिव सजेशन। आपने हम कहते हैं अच्छा जी ये तो हो गया, अब आप इसका यूं कर लें, इसका ये तोड़ कर लें कि इस तरफ इसके यहाँ लॉस हुआ है तो फलान जगह पर अगर आप इसको इन्वेस्ट कर लें तो इंशाल्लाह ऑल्टरनेटिव सजेशन। इट मीन्स ए नहीं हो सकता, बी है, सी है और ई है, आंसर इसका बनता ही। तो उन्होंने आगे पता नहीं क्या लिखा। तो हालांकि इसमें हमारा क्वेश्चन तो ये था कि मतलब ये कि ये तो उसने कहीं दिया ही नहीं हुआ कि मतलब सबको करें। असूलन तो मतलब ये होना चाहिए ना कि वो कह इसमें बताएं कि फला हो सकता है, ए हो सकता है, ये इस तरह हो सकता है या क्या, तो क्वेश्चन ही गलत। बहरहाल आंसर इसका ये बनता है बी सी एंड ई। क्लियर? और पढ़ो किताब में आगे देखो, कहते हैं इट्स अ वेल एक्नॉलेज्ड फैक्ट दैट ऑल फॉर्म्स ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल बिजनेस कम्युनिकेशन have an inherently formal and impersonal style which does not necessarily reflect the personal characteristics of the individual responsible for the communication. What are the reasons for that? क्वेश्चन समझें तो आंसर खुद समझ आ जाएगा। कहता है कि ये कहा जाता है कि जितना भी एक्सटर्नल या इंटरनल रिटन बिजनेस कम्युनिकेशन होता है वो हमेशा क्या होता है, उसमें दो बातें होती हैं, एक वो फॉर्मल होता है, ठीक, और एक वो इम्पर्सनल होता है। ये भी पेपर में आपसे पूछते हैं कि इम्पर्सनल से मुराद क्या है। इसका मतलब आप अपनी जात को बीच में नहीं लाते, आप उस इदारे को लेकर चलते हैं। फर्ज की एक बात मैं समझता हूँ ये तो गलत कर रहे हैं कॉलेज वाले, इम्पर्सनल अप्रोच है। मैं कहूँ ठीक है यार उनकी एक पॉलिसी है तो इट्स ओके, इम्पर्सनल में आप अपने आप को शामिल नहीं करते, ठीक। तो कहता है कि ये जो चीजें हैं इसमें से कौन सी चीज जो है वो किसी बंदे की पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब कहा जाता है कि आपने स्टाइल रखना ही है, पर्सनल नहीं बल्कि इम्पर्सनल और फॉर्मल। तो कहते हैं ये जो ऐसा होता है इसकी वजह क्या है, व्हाट आर द रीजन फॉर दैट, कैसा आप क्यों करते हैं कि भाई आप अपनी सपोज आप समझते हैं कि दिस थिंग इज रॉन्ग, तो व्हाई डोंट यू से दैट थिंग। तो हम कहते हैं जी इदारे की अपनी पॉलिसी होती है तो इसलिए हमें इदारे की उस जो भी तरीक़ेकार है, उनके जो ज़ाब्ते हैं उसमें हमने रह के चलना होता है, वजह इसकी ये होती। तो अब कहते हैं जी मतलब ये कि आप पर्सनल अप्रोच क्यों नहीं रखते, व्हाट आर द रीजन। आप होल्डिंग ऑफ अथॉरिटी एंड इम्पार्शियलिटी, पहली बात तो ये कि आप चाहते हैं जो अथॉरिटी है उसको बरकरार रखें, यानी कि इदारे का जो भी सिलसिला है उसको चलाएं
اور امپارشلٹی مطلب اس میں آپ کی غیر جانبداری ہو، یعنی کہ آپ اس میں شامل نہ ہو. یہ بات ٹھیک ہے کہ نہیں ہے؟ آپ ہولڈنگ آف اتھارٹی سے مراد یہ ہے کہ جو بھی فرض کیا ادارے کے کسی مالک نے یا آپ کے باس نے کہہ دیا، آپ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے جی، وہ اگر آپ کو غلط بھی لگتا ہے تو آپ ہولڈنگ آف اتھارٹی مینس کہ آپ کے دل سے اوکے. اور امپارشلٹی مینس کہ اس میں آپ اپنی رائے نہیں دیتے. یہ بات ٹھیک ہے. دوسرا کارپوریٹ امیج اینڈ افیکٹونیس. اس کارپوریشن یا جو بھی ادارہ اس کے امیج کو آپ پروموٹ کرنا مقصد ہوتا ہے، اس لیے ہم ذاتی اس پسند ناپسند کو بیچ میں نہیں ڈالتے. یہ بات بھی ٹھیک ہے. بزنس ریگولیشن اینڈ اپروپریٹ ریکارڈ کیپنگ. اور تیسری بات یہ کہ بزنس کے جو کچھ اصول وغیرہ ہیں ان کو آپ نے لے کے چلنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو ڈی میں وغیرہ آل آف دا ابو. تو پھر آنسر کیا ہوگا؟ کوشچن سمپل یہ تھا کہ وائی ڈونٹ یو گو فار پرسنل اپروچ، کہ آپ اپنی ذاتی رائے کیوں نہیں چلاتے کسی ادارے میں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو ہم کہتے ہیں ایک تو اتھارٹی کا مسئلہ ہوتا ہے، دوسرا اس ادارے کے امیج کا مسئلہ ہوتا ہے، تیسرے بزنس کے جو ہے وہ اپنے جو بھی ریگولیشنز ہیں فرض کیا وہ غلط بھی ہیں. آپ سمجھتے ہیں یار اتنا ٹیکسٹ نہیں ہونا چاہیے، لیکن آپ کہتے نہیں یار ہم نے اس پہ عمل کرنا. تو پھر آنسر ڈی بنا کہ نہیں بنا؟ جی آنسر ڈی ہے کہ نہیں ہے؟ جی سر ٹھیک ہے. اللہ خوش رکھے. اور آگے اب یہ پھر وہ تماشے شروع ہو گئے. آگے یہ بات کرنا شروع ہو گیا 7 C's. یہ 7 C's آپ کا آئی تھنک چیپٹر نمبر 3 ہے. ان کے حوالے سے اب اس نے کچھ کوشچن شروع کر دیے، بس جو دل آتا کر ہی جاتا، کوئی پوچھنے والا نہیں. ٹھیک ہے. 7 C's کے انہوں نے آگے جا کے میرا خیال ہے علیحدہ بھی کہیں دیا ہوا. تو 7 C's کو ہم پکڑ لیں، کیا کہتے ہیں؟ یہ 7 C's کے جو کویسچنز ہیں ان کو 2-4 کو چھوڑ دیں. یہ 34 سے جو ہے 39 تک اس کو چھوڑ دیں. یہ جب ہم 7 C's کو اس کو ریٹچ کر لیں گے تاکہ آپ کے مائنڈ میں دوبارہ وہ چیزیں آ جائیں، پھر انشاءاللہ ویل ٹاک اباؤٹ دیٹ. تو اگر ہم اس کو لے لیں جو 40 ہے، اب دیکھو نا دے ہیو مکسڈ آل دیٹ. 40 میں دیکھیں کیا کویسچن ہے. کہتا ہے an empirical research study of a sample of approximately 500 diversified business organizations showed that communication skills were lacking in a large number of candidates who had applied for managerial positions. So what are the different ingredients of good communication skills that employees seek and expect from the prospective applicants for managerial position? اس طرح کے سوال وہ آپ کو آتے ہیں. کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک تجربہ سا کیا، ایک ریسرچ سیکھی، اور اس میں انہوں نے دیکھا کہ 500 مختلف جو ہیں بزنس آرگنائزیشنز جو ہیں ان کو انہوں نے اس پہ اسٹڈی کی، اور اس سے پتہ چلا جی کہ مطلب یہ جو ہیں اکثر جو کینڈیڈیٹس ہیں ان میں کمیونیکیشن سکلز اچھی نہیں ہوتی ان کی. جنہوں نے بھی یعنی کہ اپلائی کیا تھا جاب کے لیے، موسٹ آف دیم ور ناٹ گڈ ایٹ کمیونیکیٹنگ. ان کی کمیونیکیشن سکلز اچھی نہیں تھیں. تو کہتا ہے کہ مطلب یہ کہ آگے سوال یہ کر رہا ہے کہ وہ کوئی جو امپلائرز ہیں، جو مالکان ہیں کسی ادارے کے، وہ کیا مطلب چاہتے ہیں. وہ جب بھی کسی کو مینیجریل پوزیشن کے لیے رکھتے ہیں کہ مینیجر کی جاب کے لیے، تو کس قسم کی توقع رکھتے ہیں کہ اس بندے میں کون کون سی کمیونیکیشن سکلز ہونی چاہیے. سوال سمپل ہی ہے کہ واٹ سارٹ آف کمیونیکیشن سکلز a manager must have. اب آپ دیکھیں اس میں وہ کیا کہہ رہا ہے. Organize ideas and information in a coherent and complete form. جی کہتا ہے ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ مطلب ایک جو بندہ اپلائی کر رہا ہے اس کی کمیونیکیشن سکلز اچھی ہیں. Organize ideas and information in a coherent and complete form. Express and present ideas and information in a logical and persuasive manner. Effective listening to understand what people say. کہتا ہے مطلب جو بندہ اگر فرض کیا وہ مختلف باتوں کو، انفارمیشن کو آرگنائز کر سکتا ہے بڑے کوہرنٹ انداز سے، کمپلیٹ انداز سے، تو یہ تو ظاہر ایک تلاش کرتے ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے. دوسرا یہ ہے اگر وہ اپنے آئیڈیاز کو ایکسپریس کر سکتا ہے بڑے لاجیکل انداز سے، یہ پرسویسو انداز سے، تو یہ بھی اس کا ایک پلس ہے، یہ بھی کمیونیکیشن اسکل ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ اگر وہ ہی اور شی از اے گڈ لسنر، جو مینیجر اپلائی کر رہا ہے اس کی لسننگ سکلز بھی اچھی ہیں، تو یہ بھی ایک ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ مینیجر جو ہیں، جو ادارے والے جو ہیں، وہ مطلب کون کون سی اسکل ڈھونڈتے ہیں آپ سے. یہ ہمارا ہے 40
नंबर क्या है? आई थिंक 40 जी। तो व्हाट शुड बी इट्स आंसर? व्हाट, क्योंकि सवाल सिंपल सा ये है कि वो किस किस्म की चीजें आपसे मांगते हैं, ये सारी बातें वो एक्सपेक्ट करेंगे ना, ठीक है, कि आप मतलब बड़े अच्छे तरीके से इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज कर सकें, आइडियाज को एक्सप्रेस कर सकें लॉजिकल अंदाज में, इफेक्टिव लिसनर हो। तो फिर इसका आंसर डी बन रहा है कि नहीं? ये सारी स्किल उनको मांगते हैं। क्लियर? नो? इट्स सर नो, नहीं इट्स हो नो। रही। हाँ, ओके सर, ठीक है आंसर सर। इज डी। ओके। ठीक। The next is, as an informal communication network, Grapevine exists in all big organizations and transmits information through unofficial channels. कहता है ये ग्रेपवाइन जो है ये इन फॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क होता है, ये तमाम बड़े बड़े इदारों में होता सर है। 41 जी 41 रह गया। 41 नहीं पढ़ा अभी। अच्छा चलो। Managerial communication demands great skill and understanding of the audience. Respecting the audience requires. कहते हैं मैनेजरियल कम्युनिकेशन में ये इस बात का तकाजा करती है कि जो ऑडियंस है, जो आवाम है जिनसे आप बात कर रहे हैं, ठीक है, उनके जो है यानी कि एक ग्रेट स्किल्स और उनको आप अंडरस्टैंड भी कर सकें, जो आपकी ऑडियंस है। तो मतलब ऑडियंस की रिस्पेक्ट करें आप, उनकी फीलिंग्स को समझें। तो कहते हैं रिस्पेक्टिंग द ऑडियंस रिक्वायर्स, कि सही मानों में ऑडियंस फर्ज के स्टूडेंट्स हैं, आप टीचर की ऑडियंस है, तो कहते हैं उसकी रिस्पेक्टिंग द ऑडियंस से के लिए क्या कुछ चाहिए? कॉमन सेंस की बात है। कम्युनिकेट इफेक्टिवली विद इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट बैकग्राउंड्स, यूज कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, एंड कम्युनिकेट इन अ प्रेजेंटेबल एंड एथिकल मैनर। तो कॉमन सेंस की बात है, इसमें बुक का कोई ताल्लुक नहीं है। कि कहता है आपने जिन लोगों से बात करनी है उनको इफेक्टिवली कम्युनिकेट करें। ये मतलब ये कि मुख्तलिफ बैकग्राउंड के लोग होते हैं, कोई पढ़े लिखे, कोई अनपढ़, इस तरह करेंगे सब तक पहुंच जाए। दूसरा करें कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का इफेक्टिव यूज करें, एफिशिएंट यूज करें, ये भी ठीक। और कहता है कम्युनिकेशन जो है बड़ा प्रेजेंटेबल हो, बड़ा मतलब लगे कि जैसे बड़े अच्छे तरीके से हो रहा है, और एथिकल हो, उसमें यानी कि फजूलियात ना हो। एथिक्स तो हर जगह होते ही है ना, कागजों में तो कम से कम होते हैं, बाकी हों या ना। तो इसका फिर आंसर क्या होना? 41 का। ये सारी बातें होंगी कि नहीं होंगी? ठीक है। कहता है कि मतलब आपने लोगों को, अपनी ऑडियंस आपके क्लाइंट्स हो सकते हैं, कस्टमर हो सकते हैं, कहता है उनको रिस्पेक्ट करने से क्या मुराद है कि उनसे आप किस तरह चलें। तो ये सारी बातें सही है ना। इफेक्टिवली कम्युनिकेट करें, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को इफेक्टिव यूज करें, और कम्युनिकेशन आपका प्रेजेंटेबल हो और एथिकल हो। तो इसका मतलब ये सारी बातें होनी चाहिए। आंसर इज डी। ओके। 42 को देख लें। 42, an informal communication network, as an informal communication network, Grapevine exists in all big organizations and transmits information through unofficial channels. ये Grapevine जो है उसकी बात कर रहा है कि ये मतलब तमाम इदारों में चलता है, ठीक। Grapevine आपको बताया था, इसका मतलब है अंगूर की बेल, अंगूर की बेल। तो Grapevine कम्युनिकेशन क्या था, इसकी मैंने आपको दो बातें बताई थी। पहली बात ये इनफॉर्मल होता है, ये इनफॉर्मल होता है, और दूसरा ये अनऑफिशियल होता है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के लिए इट्स नॉट अ मस्ट कि वो ग्रेपवाइन हो। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन अगर हम रूटीन में किसी से कोई वैसे चलते फिरते बात करते हैं तो वो इनफॉर्मल है। लेकिन ग्रेपवाइन की डेफिनेशन हमने लिखी थी कि ये अनऑफिशियल, हाँ, इसकी डेफिनेशन ये बनती है अनऑफिशियल, अनऑफिशियल। तो अनऑफिशियल चीज इनफॉर्मल खुद ब खुद ही होती है। अनऑफिशियल इनफॉर्मल कम्युनिकेशन गैर सरकारी तौर पर, यानी कि किसी इदारे में जो भी कम्युनिकेशन होता है वो ग्रेपवाइन होता है। विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी इदारे में जो सरकारी तौर पर नहीं, फॉर्मल तरीके से नहीं कि फलान जी हमने ऑर्डर दिया फलान, बल्कि आपस में जो लोग बातें शातें कर रहे होते हैं। टीचर्स फर्ज के कैंटीन में बैठे आपस में कह रही है तनख्वाहें बड़ी थोड़ी,
स्टूडेंट्स कह रहे हैं यार नासिर साहब टाइम ही ज़ाया कर रहे हैं, कोई कैफे में बैठे हैं या कॉलेज के प्ले ग्राउंड में बैठे हैं, तो अनऑफिशियल अंदाज से जो भी कम्युनिकेशन है वो मुलाजमीन का हो सकता है, वो मालकान का भी हो सकता है। मालकान भी आपस में वही बंदे ही होते हैं, किसी का बैठ के वो ये कहें यार मैं तो थक गया हूँ जॉब कर करके, यार काम बहुत ज्यादा है, यार बच्चों की फीसें पूरी नहीं हो रही। तो ये जो है किसी इदारे के अंदर जो हम इनफॉर्मल कम्युनिकेशन करते हैं उसे हम कहते हैं ग्रेपवाइन। तो वैसे अगर कम्युनिकेशन इनफॉर्मल की तो कई शक्लें हो सकती है ना, इसलिए इन दोनों को मिक्स नहीं करना। मैंने आपको बताया था इनफॉर्मल कम्युनिकेशन डज नॉट मीन ग्रेपवाइन। ग्रेपवाइन इनफॉर्मल होता है, लेकिन इनफॉर्मल ये लाजमी नहीं कि ग्रेपवाइन हो। ठीक, अब देखें क्वेश्चन देखें, तो कहता है कि व्हाट डिफाइंस इनफॉर्मल ग्रेपवाइन नेटवर्क्स mostly among workers, but it is also prevalent among managers. Flows in all directions in the organization, spatially and hierarchically. Hierarchically. People oriented rather than work oriented. तीन बातें उसने की हैं। कहता जी पहली बात ये कि ये ग्रेपवाइन आमतौर पर वर्कर्स में होता है, लेकिन मैनेजर जो हैं या जो उसकी मैनेजमेंट के लोग उनमें भी हो सकता है। तो आप क्या कहते हैं, ये बात सही है? कहता है आमतौर पर वर्कर्स करते हैं लेकिन दूसरे लोग भी कर सकते हैं। तो ये बात सही है ना, मैंने आपको बताया कि जो एम्प्लॉयर्स हैं उनमें भी होता है। वो अलग बात है कि ज्यादा एम्प्लॉयज में होता है, जो माल वो है वो भी तो इंसान ही है ना, वो आपस में बात करें वैसे कहीं बैठ के चाय पीते हुए कॉफी पीते हुए, तो ये भी जो है वो ठीक है ग्रेपवाइन है। और सेकंड में कह रहा है फ्लोज इन ऑल डायरेक्शंस। कहता है मतलब इसमें कोई यानी कि वो नहीं होती, कोई संत नहीं होती कि जी फर्ज किया ऊपर से डाउनवर्ड कम्युनिकेशन होना है या अपवर्ड होना है या हॉरिजॉन्टल होना है, बल्कि इट फ्लोज इन ऑल डायरेक्शंस। तो जाहिर है जब आपस में आप बातें करें तो उस टाइम कोई स्टूडेंट टीचर से बात कर सकता है, कोई मालिक किसी स्टूडेंट से बात कर सकता है, कोई मुलाजिम किसी सिक्योरिटी गार्ड किसी मैनेजर से बात कर सकता है। तो ये बात ठीक है कि इट फ्लोज इन ऑल डायरेक्शंस। ठीक है, उनकी जो तरतीब के हिसाब से या जो भी एक स्पेस के एतबार से, मतलब ये कहता है तमाम डायरेक्शन में चलता है। ठीक है, ये बात सही है ना, वर्टिकल भी होता है, हॉरिजॉन्टल भी होता है, सब कुछ होता है। और पीपल ओरिएंटेड रादर देन वर्क ओरिएंटेड, ये बात सही है। कहता है ये जो कम्युनिकेशन है ये ज्यादा पीपल ओरिएंटेड होता है, यानी इसका मेन फोकस आपके जाती मसले मसाइल होते हैं। आप कहते हैं सर फीस इकट्ठी नहीं हो रही, ठीक है, काम से ज्यादा इसमें जाती उसका होता है कि हर लोग अपने जाती मसले मसाइल जिस तरह की बातें शेयर करते हैं। क्योंकि अगर काम का हो तो वो तो फॉर्मल हो जाएगा ना, इस वक्त लोग थोड़ा रिलैक्स भी हो रहे होते हैं, कुछ आइडियाज भी शेयर करते हैं। तो ये इसका मेरे तीनों बातें ठीक। सो आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव। क्लियर? 43 को देखें, वो कहते हैं एज एन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क ग्रेपवाइन एग्जिस्ट इन ऑल बिग ऑर्गेनाइजेशंस एंड ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन थ्रू अनऑफिशियल चैनल्स। व्हाट इज नॉट ट्रू फॉर ग्रेपवाइन नेटवर्क? ऊपर उसने कहा जी ग्रेपवाइन की मतलब की डेफिनेशन क्या बनती है, और अब वो कह रहा है कि ग्रेपवाइन में कौन सी चीज शामिल नहीं है। मैंने सवाल थोड़ा सा उसने घुमा दिए, तो अब देख लें। पहली बात वो कह रहा है कि मतलब गेट स्ट्रॉन्गर व्हेन ऑफिशियल कम्युनिकेशन चैनल्स आर वीक। पहली बात उसने ये की कि ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन जो है मजबूत होता जाता है कब, जब ऑफिशियली ये खबर आपको ना मिल रही हो। ये बात सही है कि गलत? एक चीज आपको फर्ज किया मैनेजमेंट की तरफ से नहीं मिल रही, तो आपके दोस्तों में से किसी का फर्ज किया कोई दोस्त का कोई अंकल टीचर है या कोई प्रोफेसर है या मैनेजमेंट में, वो कहते हैं मैंने भी ये सुना है। तो कहते हैं ये जो है जब ऑफिशियली एक चीज वीक हो, खबर ना मिल रही हो, तो ये अनऑफिशियल चैनल फिर जो मजबूत ज्यादा हो जाता है। ये बात सही है। सोशल एंड पर्सनल इंटरेक्शन ऑफ द एम्प्लॉयज एग्जिस्ट। इसमें ज़ाहिर है लोग आपस में सोशल लिहाज से या पर्सनल लिहाज से इंटरेक्शन करते हैं, गप्पें लगाते हैं, चुगलियां करते हैं, सब कुछ। ये बात सही है। तीसरा क्या है, ओनली ओरल कम्युनिकेशन। कहता है ग्रेपवाइन जो ये सिर्फ ओरल होता है, इसको फिलहाल छोड़ दें। कम्युनिकेशन इज वेरी फास्ट। जाहिर है इस तरह की जो आपस की गपशप है वो तेज तो होती है ना, उसने कोई चेन के जरिए चलना नहीं है। आपने मुझसे बात की, कैंटीन से बाहर निकल के बात की, उधर चले गए इधर चले गए, ठीक,
तो इसका मतलब है ए बी है, बी भी है और डी भी है, तो फिर ये ओनली ओरल कम्युनिकेशन जो है, इसका मतलब है ग्रेव वाइन सिर्फ ओरल होता है। तो अक्सर तो वैसे ओरल ही होता है, लेकिन लाजमी नहीं है। पर इसके हो सकता है मैं फारिग टाइम में किसी को कहता हूँ यार ये कॉन्सेप्ट ये है, यार ये पॉइंट इस तरह है, ये है, जरूरी नहीं कि ओरल हो, ये रिटन भी हो सकता है। तो इट मीन्स आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस आवर आंसर इज सी, क्योंकि हमने ये देखना था कौन सी चीज ग्रेव वाइन, और ग्रेव वाइन से एक दो सवाल वो कहीं ना कहीं से डालते ही डालते, ठीक नहीं है। ओके, मैंने आपको बताया था कि जो ग्रेव वाइन कम्युनिकेशन है इसकी जो बुनियादी फीचर्स क्या हैं। तो एक बताया था ये को एग्जिस्ट, ये यानी कि फॉर्मल कम्युनिकेशन के साथ साथ चलता है, ठीक है। और दूसरी हमने बात की थी रूमर बेस्ड होता है, आमतौर पर ये अफवाह पे मबनी होता है, लाजमी नहीं लेकिन आमतौर पर। इसलिए हम ये नहीं कह सकते खबर ऑथेंटिक, ठीक है। और तीसरा ज़ाहिर है ये कि मतलब जैसे उन्होंने कहा स्पीडी होता है, इसमें एक बात एक ने की दूसरी तक पहुंची वो है, तो इनफॉर्मल तो होता ही होता ज़ाहिर। तो इसकी 3-4 फीचर्स हैं कि इसमें ये बातें होती हैं, ठीक है। तो ये भी उन्होंने पेपर में क्वेश्चन पूछा था कि ये उसके साथ होता है या अलहदा होता है। तो ये को एग्जिस्ट करता है, यानी कि फॉर्मल के साथ, यानी कि फॉर्मल नहीं होगा तो ये फिर ग्रेव वाइन होगा। हाँ, ये जरूर कहा जाता है कि व्हेन फॉर्मल कम्युनिकेशन इज अ बिट स्लो, फॉर्मल कम्युनिकेशन स्लो हो जाए तो ये फिर ऑटोमेटिकली तेज हो जाता है। जैसे अभी मतलब आपको अभी आप सुन रहे हैं मुझे कॉलेज कब खोल रहे हैं, फॉर्मल वे में आपको नहीं पता, लेकिन कोई कह रहा है यार 18 से खोल रहे हैं, कोई कहता है 1 से खोल रहे हैं, कोई कहता है हर कॉलेज की अपनी पॉलिसी है। तो ये सारा जो है ना, अगर आप इदारे के अंदर बैठ के ये बातें कर रहे हैं फिर ये ग्रेव वाइन है, तो अगर वैसे की बैठे कर रहे हैं तो फिर इनफॉर्मल। एनीवे, तो आंसर इज सर जी फिर ये कब खुल रहा है, कोई पता है आपको? क्या चीज? कैप्स कैप्स कब ओपन कर रहे हैं? कोई पता नहीं, 1 फरवरी की ही वैसे अफवाह है, अब देखें, लेट्स सी। अभी वही बात आ गई कि इनफॉर्मल है ये ग्रेव वाइन। नॉन वर्बल ये तो informal है। कम्युनिकेशन डज नॉट इंक्लूड, हाँ आप ये 44 को देखिए कि, और इसमें से काफी ज्यादा सवाल आते हैं, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, वर्बल, नॉन वर्बल, दिस दैट। कहते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन डज नॉट इंक्लूड, उसमें क्या चीज शामिल नहीं होती नॉन वर्बल में। तो नॉन वर्बल आप सब जानते हैं कि उसमें आप लफ्ज नहीं करते बल्कि वैसे बात होती है। तो कहते हैं इसमें क्या चीज शामिल नहीं होती, इंडिविजुअल्स अपेयरेंस, ये तो होती है, आपको बताया था अपेयरेंस से आप एक गेस करते हैं, ठीक, ये टीचर है, ये प्रोफेसर है, ये एक्टर है। कॉन्ट्रडिक्शन विद द वर्बल मैसेज, ये बात सही है कि नहीं है? कॉन्ट्रडिक्शन विद द वर्बल मैसेज 44 है ना जी। नॉन वर्बल का जो है वो हमने देखना है कौन सी चीज नहीं होती। तो आपको शायद मैंने बताया था कि नॉन वर्बल जो है उसका बुनियादी थीम क्या है, कि नॉन वर्बल मैसेज का फायदा क्या होता है। नॉन वर्बल यानी क्या उसका फायदा, एक तो ये कि आपकी जो फीलिंग्स हैं, जो इमोशंस हैं, असल जो फर्ज के आप मतलब आप परेशान हैं तो आप वो एक्सप्रेस नहीं कर रहे, लेकिन आपकी चेहरे को देख के या वैसे ओवरऑल बॉडी को देख के हम कहते नहीं यार बंदा थोड़ा अपसेट लग रहा है, इसको एक्सप्रेस करते हैं। दूसरी इसका एक इम्पॉर्टेंट फायदा ये होता है कि ये अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ आपको, आप कहते हैं यार वो बंदा जब ये बात कह रहा था तो बार बार सर पे हाथ फेर रहा था या आंखें जरूर देख रहा था, ये कंट्राडिक्शन शो करता है, इख्तलाफ शो करता है आपके वर्बल और नॉन। हाँ, जो आप बात कह रहे हैं अगर गलत कह रहे हैं तो वो, पर बाद का ये होता है कि आपको बताया था कि ये मतलब सपोर्ट करता है। एक बात मैंने जुबानी फर्ज की है, लफ्जों से की है, तो ये थोड़ा सा साथ ही मैंने हाथों के इशारों से उसको एक्सप्लेन किया, तो थोड़ी सी इसका सपोर्टिव यानी कि रोल भी बन जाता है, ठीक। ये 2-3 इसकी फीचर्स हैं। तो इसमें था इंडिविजुअल अपीयरेंस, नॉन वर्बल है, कॉन्ट्रडिक्शन विद द वर्बल मैसेज, ये भी ज़ाहिर नॉन वर्बल में आ जाती है। यूनिवर्सल कल्चरल डायमेंशंस, तो आपको बताया था कि नॉन वर्बल का मसला ये होता है कि जो मुख्तलिफ कल्चर्स की अपने अपने वो हैं, तो नॉन वर्बल से हमें मतलब ये पता चलता है जी कि मतलब ये कि हर कल्चर का नॉन वर्बल जो साइन जो सिंबल्स है मुख्तलिफ, ठीक है ना। कई जगह फर्ज किया मतलब ज्यादा झुकने को बुरा समझा जाता है, कई जगह रिस्पेक्ट समझी जाती है, कई जगह फर्ज किया कोई निशान बनाया जाता है थंब और फिंगर का, तो ये अप्रिसिएशन का साइन है राउंड सा, कई जगह इससे मुराद कुछ और है।
तो मतलब कहता है कि इसमें नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की यूनिवर्सल डायमेंशंस होती हैं, ये बात भी ठीक। तो फिर हमारा आंसर क्या होगा? सी, एटीट्यूड का उससे कोई ताल्लुक नहीं। ठीक है, दिस आंसर। बात समझ आ रही? नो। 45 को देखें, द पर्पस ऑफ आउटवर्ड कम्युनिकेशन इज, कहता है आउटवर्ड कम्युनिकेशन का, आउटवर्ड कम्युनिकेशन आपको पता है वर्टिकल कम्युनिकेशन का एक एंगल है जो सबऑर्डिनेट। एटीट्यूड में क्या क्या आएगा? एटीट्यूड में तो उसका नॉन वर्बल से ताल्लुक नहीं है ना, वो तो आपको बताया था कि वो तो इंटरपर्सनल में आपको शायद बात की थी कि आपका बिहेवियर, ठीक है ना, एक आपका रवैया, वो तो एक फिक्स किस्म की चीज है ना। एटीट्यूड तो एक फिक्स चीज, आपको बताया नहीं था, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का लेक्चर लिया था, तो उसका मतलब नॉन वर्बल से ताल्लुक नहीं। एटीट्यूड में कोई इस तरह को हो फर्ज किया कि एक बंदा मुंह बना रहा है, तो ये एटीट्यूड का ये जो अंदाज है ये नॉन वर्बल है। अदरवाइज एटीट्यूड से क्या बना रहा है, हमें क्या पता कौन सा एटीट्यूड, नहीं समझे कि जो मतलब आपने फर्ज किया, ये तो हम रूटीन में कहते हैं उसका एटीट्यूड बड़ा फलान सा। तो एटीट्यूड से मुराद है वो हम जिस चीज की बात कर रहे होते हैं, हम कहते हैं वो बड़ा ये मतलब जो है वो इस तरह गुस्से से बात कर रहा था या बड़ी शक्ल बना के बात कर रहा था, ये फिर नॉन वर्बल है। अदरवाइज एटीट्यूड इटसेल्फ नॉन वर्बल नहीं। ठीक है, ये इंटरपर्सनल में भी आपसे बात की थी, बिलीव्स, वैल्यूज और एटीट्यूड का। द पर्पस ऑफ आउटवर्ड कम्युनिकेशन इज, कहता है आउटवर्ड कम्युनिकेशन जो सबऑर्डिनेट से ऊपर होता है उसका मकसद क्या होता है? क्या होता है? प्रोवाइड फीडबैक टू द मैनेजर्स, सीधी सी बात है, मैनेजर्स को फीडबैक देते हैं ये हो रहा है। अपडेट्स मैनेजर्स अबाउट द प्रोग्रेस ऑफ असाइनमेंट्स, के मुख्तलिफ कामों के बारे में अपडेट करते हैं, ये भी बात ठीक है। इन्फॉर्म्स मैनेजर्स अबाउट सबऑर्डिनेट्स फीलिंग्स एंड मोरल, या बात मतलब ये कहते हैं जी मतलब मुलाजमीन तो बड़े तंग हैं, उनके जज्बात तो ये हैं, या उनका जो एक इस टाइम जो है मोरल बड़ा नीचे आया हुआ है उनका, मतलब ठीक है। तो ये सारी बातें हो सकती है ना। अपवर्ड कम्युनिकेशन में वैसे तो मैंने आपको बताया उसका कोई एक तो हो नहीं सकता, जिस काम के लिए भी आप कर रहे हैं, अपवर्ड कर रहे हैं, डाउनवर्ड कर रहे हैं, वही उसका मकसद है। लेकिन फीडबैक देना, अपडेट देना, या मतलब अवाम मतहतों के जज्बात के बारे में इन्फॉर्म करना, तो ये चीजें तो हैं ही नहीं। फिर आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव। ठीक हो गया। आगे क्या कह रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन पैटर्न्स इन लार्ज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आर। जी, कहता है कि अगर जो फॉर्मल कम्युनिकेशन पैटर्न होता है किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसमें क्या कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। देखें ए में वो क्या कह रहा है, जरा गौर से देखें। द कम्युनिकेशन, ये ए को देखें 46 जी, कहते हैं द कम्युनिकेशन फ्लोज विद इन द प्रेस्क्राइब्ड चैनल्स ऑफ चेन ऑफ कमांड। कहते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन का एक ये होता है कि वो जो भी मतलब कम्युनिकेशन होता है वो बड़ा एक चेन ऑफ कमांड के जरिए चलता है। ये तो हम 1000 दफा बात कर चुके हैं कि एमडी जीएम को कहता है, जीएम मैनेजर को कहता है, चेन ऑफ कमांड के तहत चलता है। ठीक है, द स्पीड ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन इज जनरली स्लो। तो ये बात भी कॉमन सेंस की है कि जब एक चीज ने एक फॉर्मल चैनल से चलना है, स्टेप्स में चलना है, तो स्पीडी तो नहीं हो सकता ना। फर्ज के वक्त ही पहले एमडी बात करेगा, फिर फलाना बात करेगा, फिर मैनेजर बात करेगा, फिर असिस्टेंट मैनेजर करेगा, फिर उसका कुछ, तो जाहिर है ये थोड़ा सा स्लो होगा, जनरली का तो स्लो होता है। द मैसेज आर कंसिडर्ड एज ट्रू एंड ऑथेंटिक वर्जन ऑफ ऑफिशियल पॉलिसीज। जब एक चीज एक चेन ऑफ कमांड से आती है तो जाहिर है उसको मतलब कहा जाता नहीं, जाहिर है ये मतलब मालिकान ने रिटर्न फॉर्म में ये कहा कि ये चीज हो रही है, या फर्ज किया एक मैसेज आया कैश की तरफ से, उन्होंने तनवीर साहब जो हाँ जीएम है, तो इसलिए मतलब जाहिर है ये चीज सही लगती है, ऑथेंटिक लगती है। ठीक है, तो इसका आंसर फिर क्या हुआ? कहता फॉर्मल कम्युनिकेशन जो पैटर्न्स हैं उनमें क्या कुछ होता है, तो जाहिर है मतलब एक चेन ऑफ कमांड के जरिए होता है सब कुछ। कम्युनिकेशन की स्पीड थोड़ी कम होती है और मैसेजेस को ऑथेंटिक या पक्का समझा जाता है कि हाँ जी भाई ठीक है। फर्ज क्या एक आपको मैं मैसेज करता हूँ तो आप कहेंगे यार पता नहीं बात सही है कि नहीं, और एक बात फर्ज के नहीं बेग साहब की तरफ से आपको आता है, सीईओ की तरफ से कि जी क्लासेस जो है क्लास से हो रही है, तो वो ज्यादा ऑथेंटिक होगा। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा आंसर इज जी, यानी क्या आंसर बना 46, सॉरी ऑल ऑफ द अबव।
यस सर, ऑल तो ऑफ द बोलो अबव। ऑल ऑफ द जी अबव, सर, ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव, शाबाश। अगला थोड़ा देख लो, ये क्या कह रहा है कि ऑल आर ट्रू फॉर फॉर्मल कम्युनिकेशन एक्सेप्ट, कहते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन में सारी बातें सही हैं सवाए फलां के। नंबर 1 में कह रहे हैं डिस्टॉर्शन प्रॉब्लम in the process of formal communication are maximum. The process of formal communication is expensive and time consuming. The process of formal communication has restrictive implications. Or informal information of confidential nature should not be divulged to everyone. तो क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन को समझने की जरूरत है। कहते हैं कि मतलब फॉर्मल कम्युनिकेशन के हवाले से सारी बातें सही हैं, इनकी 3 बातें सही हैं और हमने देखने कौन सी बात सही कौन सी बात सही नहीं है। ठीक, ये हमारा क्वेश्चन। ए को अगर आप देख लें, कहते हैं डिस्टॉर्शन प्रॉब्लम इन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन आर मैक्सिमम। अगर एक फॉर्मल कम्युनिकेशन है तो उसमें डिस्टॉर्शन का चांस, यहाँ डिस्टॉर्शन से बड़ा रूटीन का मीनिंग ले रहा है कि उसमें कोई गड़बड़, तो कहते हैं उसमें गड़बड़ या कोई मसला होने का इम्कान बहुत ज्यादा है। ये बात सही है गलत? अगर एक फॉर्मल कम्युनिकेशन हो रहा है तो उसमें तो डिस्टॉर्शन का चांस कम होगा नहीं यार। सर वो आजकल गलत कहते होनी हैं चाहिए, ठीक है, तो ये बात मतलब ये नहीं होनी गलत, चाहिए। और हमने गलती को ढूंढना है। ये गलत लग रही है, हम लेट्स सपोज दिस इज द आंसर, लेकिन फिर भी बी को देख लें। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन इज एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग, ये बात सही है, थोड़ा महंगा होता है, उसमें सब कुछ करना पड़ता है, टाइम लगता है। सी को देखें, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन हैज रेस्ट्रिक्टिव इम्प्लीकेशंस, कहते हैं इसकी बड़ी महदूद यानी कि इसके वो होते हैं इम्प्लीकेशंस होती हैं। ये इसमें मतलब ये कि इतनी ज्यादा यानी कि आगे गड़बड़ का खतरा नहीं होता। ठीक है ना, जैसे एक जुबानी की बात की तो बात पता नहीं क्या की क्या बन जाए, तो कहते हैं इसकी इम्प्लीकेशन यानी कि इतनी ज्यादा अगर होती भी हैं तो कम होती हैं, क्योंकि एक चीज पूरी चेन के जरिए आ रही है। ये बात भी ठीक है। फॉर्मल कम्युनिकेशन में मतलब उसमें एक होता है ना, उससे ग्रेव बाइन से खबर हुई तो पता लगे बाद में खबर बिल्कुल ही झूठी थी। तो फॉर्मल बेस से जब उन्होंने फर्ज किया जी छुट्टियां जो है, जैसे शफकत महमूद ने कहा कि फलां फलां, तो उसमें हम सब कहते हैं भाई ठीक है जी, इंफॉर्मेशन ऑफ कॉन्फिडेंस शुड नॉट बी डाइवर्ज टू एवरीवन। कहते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन के हवाले से ये बात सही है कि गलत है कि जो कॉन्फिडेंशियल किस्म की जो इंफॉर्मेशन है, डाइवर्ज कहते हैं फैलाने को, तो कहते हैं वो हर किसी को नहीं बतानी चाहिए। ये बात सही है या गलत? ये बात सही है ना, कि मतलब ये कि जी सर सही है। हाँ, रूटीन में कोई कई बातें होती हैं कि वो मालकान को पता होती हैं ऊपर, लेकिन वो कहते हैं नहीं यार ये कॉन्फिडेंशियल बात है, ये फिलहाल फर्ज किया आपको यही मतलब खबर देनी है कि जी मतलब ये कि अगली दफा से फर्ज किया जो है आपकी जो है पास जो है परसेंटेज वो 60+ में होगी, तो अब फटाफट वो देते हो, कहते हैं हम तो हमें तो आइडिया नहीं था, आपने एकदम क्या कह दिया, तो कहते हैं फिलहाल इसको रहने दो, मुनासिब मौके पे बताएंगे। तो बहरहाल इसमें आउट ऑफ द गिवन आवर आंसर इज ए। ठीक, डिस्टॉर्शन प्रॉब्लम इन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन आप मैक्सिमम, ये बात गलत है क्योंकि डिस्टॉर्शन का चांस कम है, ज्यादा नहीं। 48 को देख लें, द प्राइम पर्पस ऑफ विजुअल प्रेजेंटेशन एड्स सच एज पिक्चर्स, ड्राइंग, चार्ट्स is to communicate with greater clarity and to increase the level of understanding among the audience. What considerations should be kept in perspective to achieve optimum benefits of visual presentation aids? तो ये फिर कॉमन सेंस की बात है। कहते हैं जो विजुअल एड्स होती हैं, ठीक है ना, पिक्चर्स हैं, ड्राइंग्स हैं, चार्ट्स हैं, ग्राफ्स हैं, तो कहते हैं इसका फायदा क्या होता है कि चीज थोड़ी सी ज्यादा क्लियर हो जाती है, इसकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी आसान हो जाती है। सिर्फ फर्ज के मैं लिख ही रहा हूँ तो इससे आपको कुछ ना कुछ आसानी हो रही है ना, यही बोल रहा हूँ तो मुश्किल होती है। तो क्वेश्चन ये है कि अब ये पता नहीं कौन सा चैप्टर है, व्हाट कंसिडरेशन शुड बी केप्ट, कहता क्या क्या बातें आप जहन में रखें कि जो विजुअल प्रेजेंटेशन एड्स हैं, जो विजुअल्स आपने इस्तेमाल किए हैं, यानी कि चार्ट्स हैं, ग्राफ्स हैं, कोई व्हाइट बोर्ड है, कोई ऑडियो, कोई वीडियो है, तो कहता है क्या किया जाए कि उसका ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। तो विजुअल प्रेजेंटेशन में से भी सवाल कोई ना कोई आ ही जाता है, 2-3 जरूर आते हैं, लेकिन ये इजी होता है। ए में देखें, कहता है विजुअल एड शुड बी यूज्ड टू हाईलाइट एंड गिव ग्रेटर क्रेडिबिलिटी टू की पॉइंट्स। कहता है विजुअल एड्स का फायदा क्या है कि इसकी वजह से क्या हो सकता है कि विजुअल एड्स कहता है हम इनको इस्तेमाल करते हैं किसके लिए, चीजों को नुमायां करने के लिए, और जो आपके पॉइंट्स हैं उनको थोड़ा सा उसमें जरा पक्का करने के लिए। फर्ज के मैंने एक चीज आपको बताई है
और साथ ही में उसके ग्राफ का पूरा बना के दिखा दूँ, ये चार्ट बना के दिखा दूँ डायग्राम में, तो फिर वो चीज़ थोड़ी सी ज़्यादा समझ आती है, ज़्यादा हाईलाइट होती है। ये बात ठीक है। विजुअल एड्स मस्ट बी क्लियरली विजिबल टू द एंटायर ऑडियंस। तो विजुअल एड्स में तो ये बात लाजमी होती है कि उसमें विजिबिलिटी होनी चाहिए। फर्ज के आपने देखा कई दफ़ा एक चीज़ बड़ी अच्छी होती है, तो जैसे मैं अभी देख रहा हूँ इसमें विजिबिलिटी इतनी नहीं है, तो आप थोड़े तंग हो रहे हैं। आपने ये क्या विजिबिलिटी में चीज़ देखने में दूर से नजर आए, तो ये बात ठीक है। विजुअल एड शुड बी डिस्प्लेड ओनली एट द रेलेवेंट पॉइंट्स इन द स्पीच। कहते हैं जब भी आपने किसी विजुअल एड की बात करनी है, तो जब भी स्पीच दें तो जब मुतलका बात है तो उस वक्त उस विजुअल एड को दिखाएं। फर्ज के मैं कहता हूँ कि अगली डायग्राम में हम जो है वो 7 C's की आपको खाका देते हैं, तो अगर उधर 7 C's की बजाय मैंने कम्युनिकेशन लिखा हो तो गड़बड़ होगी। तो इसका मतलब इसे कहते हैं सिंक्रोनाइजेशन। सिंक्रोनाइजेशन का मतलब यही होता है कि चीजों को मैच करना। इट मीन्स मैं फर्ज क्या कह रहा हूँ कि इन द नेक्स्ट डायग्राम वी विल टॉक अबाउट दिस थिंग। तो सिंक्रोनाइजेशन या सिंक करने का मतलब ये है कि जब मैं अगली डायग्राम का जिक्र करूँ तो अगली डायग्राम भी साथ ही नजर आ जाए। ये नहीं कि उधर मैं कहूँ जी अब हम हॉलीवुड की फ्लाई एक्ट्रेस की बात करते हैं तो आगे परवेज मुशर्रफ आ जाए या मौलाना फजल रहमान आ जाए, तो उससे गड़बड़ हो जाती है। तो वो इटसेल्फ ये आपसे पूछ सकता है कि सिंक्रोनाइजेशन क्या होती है, कि चीजों को क्या करना, मैच करना, एक्शंस को इस तरह मैच करना कि उनमें एक तरतीब आ जाए। फर्ज किया मैं जिस चीज की बात करूं साथ ही उसी की कोई एड चल रही है, ये नहीं कि बात किसी चीज की हो रही है और आगे कुछ और तमाशा लगा। ठीक है जी, तो ये हो गया हमारा जी। चलो लास्ट भी देख लें। द प्राइम पर्पस ऑफ विजुअल प्रेजेंटेशन एड्स सच एज दिस इज टू कम्युनिकेट दिस ऑल आर ट्रू फॉर विजुअल एड एक्सेप्ट। कहते हैं इनमें से कौन सी बात सही नहीं है। इस टाइप के सवाल काफी आते हैं, कौन सी बात सही है, कौन सी सही नहीं है। पहली बात कहते हैं कि कौन सी बात सही नहीं है, तो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स फाइंड केवल कौन सी बात सही है। ए में अगर शुड कंटेन इंफॉर्मेशन व्हिच कैन बी इजीली कॉम्प्रिहेंडेड बाय द ऑडियंस। कहते हैं इसमें कोई ऐसी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि जिसको मतलब ऑडियंस आराम से समझ सके। ये बात सही है कि गलत? ज़ाहिर सही है। Clip art from well-known sources should be avoided as it shows lack of original professional knowledge of the subject. एक होता है कुछ लोग जो है ना मुख्तलिफ जो है जगहों से टुकड़े इकट्ठे कर लेते हैं, तो वो जैसे एक बंदे ने 10 वो चीज पहले देखी होती है, तो उसको जब वो करते हैं तो कहते हैं उससे यार मतलब उससे तो एक लिहाज से प्रोफेशनल अप्रोच नहीं बनती ना। कहते हैं यार ये चीज तो जगह जगह हर एक किसी को पता ही है, तो ये चीज भी एक लिहाज से करने वाली है कि नहीं, करने वाली है। मतलब कि जो फेमिलियर सोर्सेज हैं, एक इंतहाई जानी पहचानी चीजें, उनको अगर आप लेके चलें तो लगता है कि जैसे यार ये तो प्रोफेशनल स्टाइल नहीं है, यानी इसमें मजा नहीं आ रहा, नयापन नहीं। ये बात भी ठीक है। After offering the explanation, the speaker should immediately turn his face towards the audience and continue to speak. हाँ, ये तो बिल्कुल लाजमी होता है कि फर्ज के मैंने आपने बात की, कई टीचर्स होते हैं वो सारा टाइम व्हाइट बोर्ड के आगे खुद खड़े रहते हैं, तो तरीका यही होता है कि आपने जो प्रेजेंटेशन चल रही है आपने उसकी तरफ इशारा किया, सिंक्रोनाइजेशन फिर पीछे हट गए, ठीक है, ताकि लोग उसको देख सकें। और डी में वो कह रहे हैं विजुअल लिमिटेशन कैन बी यूज्ड इन लिमिटेड केसेस, कि विजुअल एड्स को हम बड़े जो है वो महदूद सूरतों में इस्तेमाल कर सकते हैं विजुअल प्रेजेंटेशन। तो ये बात सही है कि गलत? ये बात गलत है कि विजुअल एड आपको पता आजकल तो ड्रामा चल ही ये रहा, विजुअल एक फजूल सी चीज होती है, उसमें टीचर स्लाइडें दे दे के आपको मुतमईन कर देता है, बाद में बेशक आप फेल हो। ठीक है, तो इट मींस आउट ऑफ द गिवन आंसर इज डी। क्लियर? तो आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे। इंशाल्लाह जिंदगी सर जी आपने नाश्ता नहीं करना आज? आप मुझे जाने देंगे तो मैं करूंगा ना सर। नाश्ता करें, सूखा लगाएं सर आज आप बस। ओके ओके, डू एंजॉय, थैंक यू वेरी मच, इंशाल्लाह सी यू टुमारो। कॉन्फ्रेंस बन रहा है कुछ पूछ के नहीं? ठीक है, ओके सर मजा आ रहा है पढ़ने। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज सर। ऐसे मजा आ रहा है पढ़ने का।